guys, I'm Amol Azad from The Flaming Overseas. I'm here among all of you people with having a lecture on a topic of grammar. Today's my topic is on modals. Before having the lecture on modals, I just want to let you know the importance of modals, why we should use it. Modals are very important. Modals are very necessary when you are creating any sentence structure, when you are going to communicate with someone else, when you are going to write down something else to someone without using modals. It is very difficult to let know the second person what are your feelings, emotions. While doing speaking, you can add expressions, the facial expressions, you can change the body language of yours, and the second person can come to know how you are using that sentence structure. Are you are you angry with that person? Are you emphasizing on certain words or not? Like in speaking it is easy, but in writing it is not easy. Okay, so in writing, okay, not only in writing actually, okay, you have to also add these all modals in speaking too, but in writing these are very important. So we do have number of modals here. We do have may, might, can, could, will, would, shall, should, has to, have to, had to, is to, am to, are to, used to, need to, and dare to. These all are the modals, and after after having these all modals, you have to use the first form of the verb, only first form of the verb. Along with these all, we do have might plus have, would plus have, could plus have, and should plus have. After using these all modals, means say when you are adding these all modals, okay. So after these all, you have to use the third form of the verb. Remember, keep one thing in your brain. When you see or when you have to use have, has or had in any sentence structure, and here is a need of using verb. Remember, you have to use only the third form of the verb after has, have, and had. Okay. So today I just want to go with may and might, only may and might. Okay. So we have to start the lecture now. What is may? May है क्या और ये कहाँ यूज होगा? This word is not new one for you people. हम काफी समय से इस वर्ड को यूज करते हैं. स्कूल टाइम में whenever we had to get the permission to be entered inside the class, हम पूछा करते थे अपने क्लास टीचर को may I come in, है ना? या किसी से हमने कॉपी लेनी है तो मैं कैसे इस चीज को यूज करूंगा? May I have your copy? मैंने परमिशन लेनी है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? May I sit here? काफी फॉर्मल वर्ड है may. आज्ञा में से हम यूज करते हैं. और कौन सी आज्ञा में? जब हमने सेकंड पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, फॉर्मल वे में रिस्पेक्ट देनी है, तब हम में यूज करेंगे. हम कैन भी यूज कर सकते हैं और कैन यूज करते हैं एक्चुअली. जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तो कैन ही यूज करते हैं, जबकि वो रॉन्ग होता है. हम क्लास में एंटर होते हैं, बोल देते हैं कैन आई कम इन, दिस वन इज रॉन्ग. कैन, हाँ, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो सही है, पर भाव क्या जा रहे हैं कैन के? कैन का भाव क्या है, इमोशंस क्या है? यानी कि आप रूड लग रहे हो, सेकंड पर्सन को आप रूडली आस्क कर रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जबकि आपको क्या बोलना है? मैं अंदर आ सकता हूं. मे आई कम इन, मे आई हैव योर सीट, और मे आई हैव योर पेन, मे आई सिट हियर. तो जब आपको किसी से आज्ञा लेनी है और उसको आपने रिस्पेक्ट भी पे करनी है, देन यू हैव टू यूज ओनली मे. Is it okay? So the second rule of may is possibility. जहां भी आपको possibilities नजर आ जाए, possibilities का मतलब क्या है? संभावनाएं नजर आ जाए कि यार ये, और यार ना प्रेजेंट के अंदर जहां भी आपको possibilities नजर आ जाए कोई भी काम होने की, तब आप वहां पे may यूज करोगे. जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद राम आज आ सकता है.
राम आज आ सकता है। अब यहाँ पे एक संभावना नजर आ रही है कि 100% हम श्योर नहीं है कि राम आज आएगा ही आएगा। या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोले कि राम आज आएगा, 100% है कि वो आएगा ही आएगा, या राम आज आ सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में राम आज आएगा, 100% है उसने आना है। राम आज आ सकता है, पक्का नहीं पता यार वो आएगा या नहीं आएगा, पर आ सकता है, संभावनाएं हैं। तो जब आपको 50-50% संभावनाएं नजर आए कि काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, देन वी हैव टू यूज मे देयर। राम मे कम टुडे। अब मे आ गया, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करने के लिए। मैं सिंपली क्लैरिफाई यहाँ पे हो चुका है कि यहाँ पे कोई संभावना यूज हो रही है। ओके, कम आना, राम मे कम टुडे, राम आज आ सकता है। इज दैट क्लियर? द थर्ड रूल ऑफ यूजिंग मे इज, किसी के लिए कोई विश मांगनी हो, दुआ, हिंदी में से हम दुआ कह देते हैं, ठीक है, वहां पे हम इसे यूज करते हैं। अगेन आई एम सेइंग पीपल, ये भी हमने बहुत बार वर्ड यूज किया है स्कूल टाइम में, पर एग्जैक्टली हमें नहीं पता था कि इसका रूल क्या है। स्कूल टाइम में शायद हमने यूज किया था ऐसे मे ही लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस हुआ करता था। एंड मुझे अपनी लाइफ में याद है कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का रट्टा मारा करता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मे का यूज वहां पे क्यों हो रहा है। एंड टुडे आई विल लेट यू नो कि हम वहां पे यूज क्यों करते थे और कैसे करेंगे इन फ्यूचर टू। किसी के लिए भी दुआ मांगनी है कि यार भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, भगवान करे आप सबके अच्छे बैंड्स को उड़ा जाए, भगवान करे आप लोग अपने जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में चले जाओ, आपका वीजा आ जाए, भगवान करे आपके बैंड्स को उड़ा जाए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए विश मांग रहा हूँ। जब हमने किसी थर्ड पर्सन के लिए, अपने आप के लिए विश या किसी भी पर्सन के लिए विश मांगनी है, ठीक है, तो आपने मे वर्ड वहां पे यूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगेन, अगर मैंने आपसे आस्क करना है कि आपके लिए सॉरी विश करनी है कि आप सबके बैंड्स को उड़ा जाए, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा? May you all get your score. May you all get your score. May you get the visa of Canada. May you all get your score. भगवान करे तुम सब अपना स्कोर गेट करो। मे यू गेट द वीजा ऑफ कनाडा, भगवान करे कि तुम्हारा कनाडा का वीजा आ जाए, ठीक है। तो ये थी यूज मे के। मैं इसे एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ का हमें यूज करना है, हमें यूज करना है आगे लेने में, पर जब रिस्पेक्ट देनी हो साथ में रिस्पेक्ट भी देनी है, ठीक है। संभावना में, जब पॉसिबिलिटी है किसी भी वर्क में, और दुआ जब किसी के लिए कुछ विश करना है, ओके, देन इन दैट कंडीशन एट दोस ऑल प्लेसेस यू हैव टू यूज मे। So it was the lecture on me, and now we have to move towards the second word. This is might मे का उल्टा है। हाँ? जैसे उल्टा कैसे है? जैसे मे हमने यूज किया था प्रेजेंट में, तो might यूज करेंगे पास्ट, पहला रूल। दूसरा मैं हमने यूज किया था संभावना में, 50% संभावनाएं थी वहां पे, और माइट में क्या संभावना है कि वहां पे संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। अब दो सेंटेंस लिख देता हूं। पहला तो याद रखिए, इसे पास्ट में आपको यूज करना है, माइट जो है मे का पास्ट है। सेकंड, बहुत कम संभावना, सीधे वर्ड से मैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मे को हम शायद कह सकते हैं और माइट को हम कह सकते हैं शायद ही, ठीक है। अब मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं आपको। मैंने अभी आपको बोला था कि माइट जो है पास्ट में यूज करना है, पर ये सिंटैक्स तो पास्ट का नहीं है। यहां पे याद रखेंगे माइट के दो रूल हैं, एक तो हम इसे पास्ट में यूज करते हैं, या फिर बहुत कम संभावना हो तब हम इसे यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, दोबारा से बोल रहा हूं। माइट एक तो हम पास्ट में इसका यूज किया करते हैं, या फिर अगर प्रेजेंट में भी इसका यूज होता है, पर प्रेजेंट में कहां पे यूज होगा? जब संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। वह शायद ही आ जा सकता है, या वह आज आ सकता है।
अब मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, वह शायद ही आ सकता है, वह आज आ सकता है, दोनों में फर्क है। अगर मैं लेटर ऑन सेंटेंस की बात करता हूं, वह आज आ सकता है, इट मींस कि यहां पे संभावनाएं 50-50 हैं। और अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करता हूं, वह शायद ही आ जा सकता है, तो यहां पे संभावनाएं बहुत ही कम है। शायद ही को देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या यूज करना है, आई हैव टू यूज हियर माइट। ही माइट कम टुडे, he may come today. He might come today इसकी इंग्लिश हिंदी बनेगी वह शायद ही आ जा सकता है। He may come today वह आज आ सकता है। ओके, अब इसे हम पास्ट की सेंस में यूज करते हैं। वह आज आ सकता था, अब ये पास्ट हो, इसकी इंग्लिश की वही बनेगी, he might come today। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां भी हमने लिखा है he might come today और यहां लिखा है he might come today, पर इसकी हिंदी बन रही है वह शायद ही आ जा सकता है, और इसकी हिंदी बन रही है वह आज आ सकता था। अब ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के, प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर। अगर आप प्रीवियस सेंटेंस या प्रीवियस जो आपकी कन्वर्सेशन चल रही है वो पास्ट में चल रही है, तो सेकंड पर्सन इसे अपने आप ही पास्ट में उठा लेगा। अगर वो प्रेजेंट में चल रही है तो अपने आप इसे प्रेजेंट में ले लेगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए आप पास्ट की कोई बात कर रहे थे और आपने एकदम बोल दिया he might come today, तो उसमें समझ आ जाएगा कि आपने पास्ट की बात की, ठीक है। अगर आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो वहां पे आपने might लगा दिया, तो समझने वाला समझ जाएगा कि वहां संभावना, कम संभावना की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऐसे might का यूज है। might का एक और यूज होने वाला है, वो है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। वो कैसे होगा, conditional sentence। First of all, we have to come to know what is the meaning of conditional sentences। स्कूल टाइम में हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हुआ करते थे, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था ना, ये एक कंडीशनल सेंटेंस हुआ करता था। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ सकता था ना, ये हमारे पास सेंटेंस हुआ करते थे। और हम इसमें हमेशा कंफ्यूज होते थे और रट्टा ही लगाते थे सेंटेंसेस का। So here I would like to know you people how to convert these old sentences from Hindi to English। Okay, तो ये कंडीशनल सेंटेंस सीखते हैं, और कौन से कंडीशनल सेंटेंस में माइट यूज करना है उसका भी मैं अभी बताता हूँ। यदि वह तेज दौड़ता तो वह ट्रेन पकड़ सकता था या पकड़ लेता, ठीक है। यह है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है, इसमें कंडीशन होती है एंड कंडीशन के ऊपर एक रिजल्ट दिया जाता है। ओके, कंडीशन यहाँ पे क्या है, यदि वह तेज दौड़ता, उसका रिजल्ट क्या है, वह ट्रेन पकड़ सकता था। अब यहाँ पे तो क्या रह गया, तो यहाँ पे है एक कनेक्टर जो दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, यदि वह तेज दौड़ता। अब जब आपने कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं, पहले कंडीशन को कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में, बहुत इजी है। यदि को इफ, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड प्रोनाउन है, दौड़ता वर्ब हो गया, और तेज एडवर्ब, क्योंकि तेज जो है वो वर्ब की विशेषता, इंपॉर्टेंस बता रहा है ना। अब जब हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे लिए एक इजी मेथड क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, जो हमारे पास सेंटेंस है। अब यहाँ पे तेज दौड़ता, पीछे आ ए ई की आवाज आ रही है, इट मींस दिस पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इफ he ran fast, रन की सेकंड फॉर्म ran, एंड एडवर्ब आगे पीछे फास्ट। फिर हम यूज करते हैं कनेक्टर, देन he, वह ट्रेन पकड़ सकता था। अब देखिए यहाँ पे भी सकता था, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की लगाते हैं सेकंड फॉर्म, पर इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज करना है मॉडल। और मैंने आपको बताया था मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ही, ठीक है। तो इफ ही रैन फास्ट देन ही माइट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सकता था। अब हमें कैसे पता लगा कि इसके अंदर माइट आता? देखो संभावना है, वह ट्रेन पकड़ सकता था,
हमें संभावना की बात हो रही है, और सेकंड थिंग ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइट लगा दिया। इफ ही रन फास्ट देन ही माइट क्रैश द ट्रेन। ओके, और माइट के बाद हमने कौन सी फॉर्म यूज किया, फर्स्ट फॉर्म। तो ये था एक तरीका कि कैसे हम कंडीशनल सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक आफ्टर यूजिंग मॉडल। सो आज का जो मेरा लेक्चर था वो था मे और माइट के ऊपर। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। And if you like my lecture, or you have liked my lecture, listening my lecture, so please subscribe my channel and share the link on WhatsApp groups of yours on Facebook. Okay, and if you do have the suggestions on this video, so your suggestions are very welcomed in the comment box. Okay.